अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू की शिरकत। साबिक़ BRS हुकूमत ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां नहीं दी। रियासती वज़ीर सीताक्का ने लगाया इल्ज़ाम। मर्दों के लिए RTC की खुसूसी बस का आगाज़। इब्राहिमपट्टनम ता एलबी नगर रोड पर तजुर्बाती असास पर किया गया आगाज़। जलपल्ली वार्ड नंबर 3 में 6 करोड़ से ज़ायद लागती तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। महेश्वरम रुकन असम्बली ने की शिरकत। साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स मीट का आगाज़। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल असम्बली हल्के के रुकन असम्बली की हैसियत से तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। उन्हें तेलंगाना के स्पीकर G प्रसाद कुमार ने हलफ दिलवाया। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी, वज़ीर उमूर मुक़न्ना श्रीधर बाबू, वेप R लक्ष्मण के अलावा BRS कायदीन KT रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदा रेड्डी, G कमलाकर, सत्यवती राठौर, साबिक़ स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली और कौंसल भी मौजूद थे। काबिल अज़ीम के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के अहाते में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुनक़िदा पूजा में शिरकत की। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव असम्बली इंतखाबात के नताइज के फौरी बाद गिर जाने की वजह से दवाखाने में शरीक थे और इसी वजह से उन्होंने असम्बली की रुकनीत का हलफ नहीं लिया था। लेफ्ट 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 अलग रियासती वज़ीर सीताक्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ BRS हुकूमत अपने 10 साला दौर इक़्तिदार में नौजवानों को सरकारी महकमेजात में मुलाजमतें देने में नाकाम रही। इसके बावजूद भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से 2 लाख नौजवानों को मुलाजमतें देने के ऐलान के बाद भी कांग्रेस हुकूमत पर की जाने वाली तनक़ीद मुज़ह का ख़ैज़ है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत देने के बाद BRS कायदीन अपनी सियासी बका की खातिर बौखलाहट का शिकार होकर ऑटो ड्राइवर्स को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। सीताक्का ने ज़िले आदिलाबाद के इंद्रावैली की प्रजा सभा को कामयाब बनाने की भी अपील की। గతంలో ఇంద్రవెల్లి మీటింగ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు మరి PCC అధ్యక్షుడైన వెంటనే మొదటి బహిరంగ సభ, భారీ బహిరంగ సభ ఆ రోజు ప్రేమ్ సాగర్ అన్న గారి భుజాల మీద నుంచే వాస్తవానికి వారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని పూర్తి స్థాయిలో చేయడం జరిగింది. చాలా పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ అయింది. దళిత గిరిజన దండోరా, ఆ దండోరను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి మోగించి ఈరోజు అధికారంలోకి రావడానికి కూడా అలాంటి పోరాట స్ఫూర్తి, ఇంద్రవెల్లి పోరాట స్ఫూర్తి వేదికగానే తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత మరో సోదరుడు మా డిప్యూటీ సీఎం గారు భట్టి విక్రమార్కన్న గారు కూడా వారి యొక్క పాదయాత్ర కూడా ఇక్కడ నుంచే ప్రారంభించడం జరిగింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ, పోరాటానికి స్ఫూర్తిగా ఆ రోజు ఎట్లయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈనాటి సీఎం గారు
మరి బట్టి విక్రమార్కన్న గారు ఎట్లయితే వారు ఎంచుకున్నారో అభివృద్ధి పదంలో కూడా మొదటి అడుగు వెనుకబడిన ప్రాంతంగా అనేక సమస్యలతో కునారిల్లుతున్న ప్రాంతాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు సమాంతరంగా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడం కోసం మొదటి అడుగు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచే పడుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. మరి మొదటి పూజ కేశలాపురంలో నాగోబా జాత దేవాలయానికి పూజలు చేసి 1 గంటకు అక్కడి నుంచి మరి అక్కడ కొన్ని ఫౌండేషన్స్ కానీ అదేవిధంగా మరి ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మరి ఉట్నూరు ఇంద్రవెల్లిలోని ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరకు వచ్చి నివాళులు అర్పించి అక్కడ స్మృతి వనంగా కూడా ఫౌండేషన్ వేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు మాట ఇచ్చినాం, ఎవరైతే ఆనాడు మరణించిరో ఆదివాసీ ఉద్యమంలో అమరవీరులు వారందరికి కూడా హౌసింగ్ సైట్స్ కానీ రేపు వచ్చేటువంటి ఇందిరమ్మైన్లు కానీ తర్వాత చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ పేరుతోటి ఒక స్మృతి వనం కానీ వాళ్ళ పేర్లను ఐడెంటిఫై చేసి రేపు ఇంద్రవెల్లిలో జరిగేటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు అభివృద్ధిలో మొదటి అడుగు అట్టడుగునున్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మరి డిప్యూటీ సీఎం గారి బట్టి విక్రమార్కన్న గారి యొక్క నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంచుకొని మొదటి అడుగు ఇక్కడి నుంచి వేస్తున్నారు. बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा से सवाल किया कि वो साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की किस बदउनवानी और किस धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या के चंद्रशेखर राव की जानिब से 24 घंटे बरक़ी सरबराह करना, किसानों को 5,000 रुपये फराहम करना, अक़लियतों के बच्चों को 20 लाख रुपये देना, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फराहम करना, घर घर पीने के पानी की सरबराही करना अगर जुर्म है तो वज़ीर आला मुजरिम है। इसकी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आवाम से वजाहत करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 2,32,000 जायदादों पर तखर्रात के अमल में तेजी लाएं। డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మేము ఇచ్చిన 2,32,000 ఉద్యోగాలు కాకుండా అదనపు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మీరు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయాలి. మీరు విడుదల చేయండి, మేమేం తొందర అంటలేం. మీరు విడుదల చేయండి. ఆ విడుదల చేసిన తర్వాత మీరు అన్న 2024 డిసెంబర్లోనే ఈ 2,32,000 ఉద్యోగాలు కాకుండా అదనపు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మీరు జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. నేను ఇంకోటి కూడా సూటిగా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. ఇలా కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళకి నేను సూటిగా ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. ఈ భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలన్నా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం మీరు చూపిస్తే ఇదే అసెంబ్లీల సాక్షిగా నా ముక్కు భూమికి రాకి క్షమాపణ కోరుతా. లేకుంటే మీరు కేసీఆర్ గారు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండ్రు అని మీరు ఒప్పుకుంటారా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇలా సింపుల్ కంపారిజన్ యావత్ భారతదేశంతోనే నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. ఒక్క బీజేపీ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలిస్తున్న రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కానీ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఉద్యోగాల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చుంటే నా ముక్కు భూమికి నేను రాకుతా అని చెప్పి నేను సవాల్ విసురుతా ఉన్నాను. నేను విసిరిన సవాల్కి నేను 20 రోజుల క్రితం కూడా నేను విసిరిన సవాల్కి ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తలేరు. ఎందుకు స్వీకరిస్తలేరు? ఎందుకంటే మీకు భయం అవుతుందా? నిజాలు చెప్తే నిజాలు బయటపడితే అని మీకు భయం అవుతుందా? అరే మీకు దమ్ముంటే రారి భయం, మేము చర్చకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు రాండి, ఎవరు వస్తారో ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామా లేదా అని చూపించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా మళ్ళొక్కసారి మీకు కూడా నేను డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా మీకు చదువుతా. అగ్రికల్చర్ అండ్ కోఆపరేషన్ సెక్రటేరియట్ 5 सैबराबाद पुलिस की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट का कमिश्नर पुलिस सैबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ जोन्स के पुलिस खिलाड़ियों ने कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती को सलामी भी दी। इस मौके पर CAR हेडक्वार्टर से वाबस्ता DCP
शामिर के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। मस्कुरा स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट में साइबराबाद कमिश्नरेट के तकरीबन 1000 पुलिस अहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 150 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। Now we could see our chief guest, Avinash Mohanty Garu, IPS, would offer the gifts to the winners. మీరు ఇందాక రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారో విన్నింగ్ అప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. సో ప్లీజ్ జాయిన్ అవర్ హ్యాండ్స్ టు కంగ్రాచులేట్ ది 3 winners, థర్డ్, సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ ప్లేసెస్. అండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి పవన్ గారు. యాక్చువల్లీ నా నేమ్ ఉంది, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. In ladies, in women we have 3 winners. Third winner గా ఉన్న తేజస్వి గారు గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ 2024లో భాగంగా ఈరోజు వాలీబాల్లో మొదటి మ్యాచ్ ట్రాఫిక్ జోన్ అలాగే మాదాపూర్ జోన్, ఈ ట్రాఫిక్ వింగ్ మాదాపూర్ జోన్ మధ్యలో కూడా మొదటి మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మొత్తం 2024 యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్కి వచ్చిన ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్, ఆల్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ సైబరాబాద్ పోలీస్, మన ఆల్ ద స్టాఫ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, మినిస్ట్రియల్ అందరూ, I welcome everybody to this sports meet. First of all, teams andarki and the band ki congratulations for a wonderful parade. నేను ఇప్పుడే అక్కడ కూర్చుంటూ ఆలోచిస్తున్నా, దక్షిణమూర్తి గారికి ఎవరు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఇవంతా చెప్పడానికి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ 3 days బ్రాండింగ్ అంతా మీరే చేయాలి. సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి పార్టిసిపేట్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కీన్నెస్, ఎంథూజియాజం. అంటే కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం చూసాను మేము, అసలు మన టగ్ ఆఫ్ వార్, అసలు 10-minute ఈవెంట్కి 45 minutes ఈవెంట్స్లో. हल्का असम्बली महेश्वरम में वाक़ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 3 में SNDP नाले के कामों की गर्ज से 6 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि इन कामों का संग बुनियाद भी रखा गया। हल्का असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली P सबिता इंदिरा रेड्डी, चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, वार्ड नंबर 3 काउंसलर अहमद कसादी के अलावा BRS पार्टी जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। देखिए भाई, अहमद भाई इधर देखो, अहमद भाई इधर देखो, चोरी नहीं। जामियतुल मोमिनात की जानिब से 2 योमी कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का 3 और 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता और इतवार ईदगाह मीरालम वाक़ बहादुरपुरा रोड पर अमल में आएगा। इस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू औरत इस्लामी माशरे में दिया गया है। मरकज़ी मौजू के तहत ज़ैली मौज़ूआत भी दिए गए हैं, जिन पर पेपर पेश किए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस से उलमा, मुफ्तियान इकराम, प्रोफेसर के खिताबात होंगे। उनके अलावा कुल्लियतुल बनीन जामियतुल मोमिनात के फारिगुल तहसील तलबा को असनाद और खिलअतें भी मेहमानान के हाथों अता की जाएंगी। मौलाना साबिर पाशा ने इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मीडिया को तफसील से वाकिफ़ करवाया। जामिया के अहम मकासद में से ख़वातीन व तालिबात में दीनी शऊर बेदार हो, जिसके ज़रिए हफ्तावारी, माहानावारी इज्तिमात बराए ख़वातीन व तालिबात मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि ख़वातीन व तालिबात में इस्लामी पैगाम आम हो। और इन जैसे इज्तिमात को जामियातुल मोमिनात के मुअल्लिमात मुखातिब करती हैं। इसी की एक कड़ी जो 3 और 4 फरवरी 2024 हफ्ता इतवार बमुकाम ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क
ताड़बन रोड पर हैदराबाद पर अदीमुशान फ़कीरुल मिसाल 2 रोज़ा ख़वातीन जामियतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद की जा रही हैं। ये इज्तिमा वक्त की अहम ज़रूरत है और इनमें जो मरकज़ी जो उन्वान रखा गया है वो है औरत इस्लामी मुआशरे में। ये मरकज़ी मौजू है और इसके तहत बहुत सारे अनावीन हैं, मसलन खिदमत खल्क़ और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये भी एक उन्वान रखा गया है। शौहर बीवी के हुकूक़ इस्लाम की नज़र में, ससुराली रिश्तेदारों के हुकूक़ और लड़कियों की ज़िम्मेदारियाँ, औरत क़ब्ल इस्लाम, मुश्तरका ख़ानदान और असर हाजिर, मग़रिबी तहज़ीब और उसके मुज़िर असरात, मौजूदा दौर के अमलियात और मुस्लिम ख़वातीन, ये भी बहुत अहम उन्वान इस इज्तिमा में रखा गया है। जामियातुल मोमिनात के आलिमात, मुफ्तियात और मुअल्लिमात है और स्कॉलर्स है, इस पर बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। बेवा और यतीमों की किफ़ालत का शरई जो हुक्म है, इस पर भी वो खिताब होगा। इकसान सिविल कोड और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, दावत व तबलीग और मुस्लिम ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ, मुस्लिम लड़कों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात, तलाक़ खुला का इस्लामी निज़ाम, ख़ुदकशी के असबाब व सद्देबाब, तिजारत की अहमियत इस्लाम की रोशनी में, औरत की मुलाजिमत मुल्क व बैरूनी मुल्क में, ज़ेब व ज़ीनत की शरई हैसियत, मुसलमानों के ज़वाल के असबाब, तरबियत औलाद में माँ का किरदार, इन जैसे बहुत सारे अनावीन हैं जो इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जामियातुल मोमिनात के और बैरूनी जो मेहमान आ रहे हैं, ख़वातीन आ रहे हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। मैं फिर एक मरतबा तमाम इस्लामी माँ और बहनों से पुरखलूस अपील करता हूँ कि 3 और 4 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता इतवार बमुकाम ईदगाह मीरालम नज़द ज़ू पार्क हैदराबाद ताड़बन रोड पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और क्योंकि आप दीनी मिजाज रखती हैं, ये तो बात बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, तरबियती इज्तिमात, यानी 5-5 ख़वातीन को इकट्ठा कर दिया जाता है और उनके जो मसाइल है वो ख़वातीन उन स्कॉलर से पूछती हैं, आलिमात से दरियाफ़्त करती हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लिल तौर पर वो आलिमात उनकी रहबरी फरमाएंगे। इस वजह से फिर एक मरतबा अपील की जाती है कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा दीगर तालीमी इदारों में भी तलबा को मुख्तलिफ़ उन्वानात पर लेक्चर देते हुए शऊर बेदार कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत गाइडेंस हाई स्कूल में डॉक्टर सैयद हबीब इमाम ख़ारी जूनियर लेक्चरर सिकंदराबाद बॉयज़ 1 अक़लियती अक़ामती स्कूल के अलावा मोहतरमा फ़रहीन यास्मीन सैयदा जूनियर लेक्चरार बारकस गर्ल्स 1 टिमरीज़ ने SSC इम्तिहान लिखने वाले तलबा से SSC के बाद क्या उन्वान पर ख़िताब किया। मुक़र्रिरीन ने तलबा व मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के बारे में तफसील भी बताई। इब्तिदा में डायरेक्टर स्कूल सैयद फैज़ अहमद ने अपने इदारे का तफसीली तारुफ पेश किया। साबराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ सुलेमान नगर, 9 नंबर चिंतलमेट, हसन नगर और MM पहाड़ी में पुलिस की जानिब से 4 शम्बे की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। राजेंद्र नगर DCP CH श्रीनिवास की निगरानी में ये मुहिम अंजाम दी गई। अत्तापुर के इंस्पेक्टर P यादगिरी ने मीडिया को बताया कि इलाके में मुख्तलिफ चौराहों का दौरा किया गया, जबकि आवाम में कानून का एतमाद पैदा करने के लिए ये मुहिम चलाई गई। नौजवानों को रात देर गए गैर ज़रूरी ना घूमने की ताकीद की गई, जबकि मुकर्ररा वक्त पर दुकानों और कारोबारी इदारों को बंद करने के लिए भी जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि रात 12 बजे के बाद गैर ज़रूरी घूमने से गुरेज किया जाए और अगर कोई वजह हो तो इससे वाकिफ़ करवाएं।
आज अपना अतापुर पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में चिंतलमेट MM पाड़ी 9 नंबर किशनबाग के एरिया में पूरा ऐसा सब अपना स्पेशल पार्टी के लेके अपना CP साहब और अपना DCP मैम का इंस्ट्रक्शन से एरिया पूरा दौरा करें। ये पब्लिक को भरोसा देने के लिए और रात में कोई काली पीली बाहर नहीं बैठने के लिए और काली पीली बाहर नहीं पीने के लिए, इसके वास्ते में हम पूरा अपना एरिया में पूरा फुट पेट्रोलिंग करें और पब्लिक को पूरा भरोसा दिए। हम इसी सिलसिले में जो पब्लिक को बता रहे, रात में जो टाइम पे पूरा जो एस्टैब्लिशमेंट्स है, जो पान डब्बे है, होटल है, पूरा 12 बजे के अंदर बंद हो जाना है और कोई ओपन करे तो इनके ऊपर सख्ती से एक्शन लेते और केस हम बुक करते और बाद में 12 बजे के बाद में कोई भी बाहर नहीं फिरना। ऐसा फिरे तो क्या कारण है, वो कारण का वजह से इमरजेंसी है तो फिरना, नहीं तो खाली खुली गाड़ी में इधर उधर पीट के कबूतर में बैठ के ऐसा बातें कर ले रहे तो इनके ऊपर भी हम एक्शन ले लेते हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में RTC बस का ब्रेकडाउन होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मुकामी अवाम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर बस को सड़क से हटाया, जबकि मसरूफ शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में टक्कर मारकर फरार होने का एक और वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार ने 2 बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद बशमूल खातून जख्मी हो गई। टक्कर मारकर फरार होने वाले ड्राइवर और गाड़ी की तलाश जारी है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बुद्धा नगर में 30 साला घरेलू खातून ज्योति की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ज्योति के शौहर कृष्णा पर अपनी बीवी को मारने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज भी किया। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ప్రతిసారి తాగుతుండే కొడుతుండే ఎప్పుడైనా మెడతాను దాంతో కొట్టు దేంతోనంటే దాంతో కొడుతుండే ఏది దొరికితే దాంతోనే గొంతు పడుతుండే నెత్తి పట్టి కొడుతుండే దేనికంటే దానికేసి గుద్దు 10 డేస్ ఉంది ఇదే గొడవలు ఇదే సరే సార్ ఆయన చంపేసారు వాళ్ళు ఏం చేసారు జ్యోతి 28 ఏళ్ళు ఉంటుంది ఆయన భర్త పేరు ఏం పేరు కృష్ణ ఏం పని చేస్తారు సిక్కి కొడతాడు ఇలా ఆమె ఏం పని చేస్తారు జ్యోతి ఆమె పిల్లల పని చేస్తారు పిల్లలు ఉన్నారా పిల్లలు లేరు ఎవరు లేరు అని ఏం చేసిండో ఇక ఏమో అమ్మాయి ఏమని పని మీ మరి మీరు ఏమంటుంది అమ్మానం
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से मर्दों के लिए खुसूसी बस सर्विस का आगाज़ किया गया। मज़कूरा सर्विस इब्राहीमपट्टनम ता एलबी नगर रूट पर मज़कूरा सर्विस का आगाज़ किया गया है। RTC ज़राए के मुताबिक इस रूट पर कई कॉलेजेस के नौजवान सफ़र करते हैं और मसरूफ़ औक़ात में उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए शुरू की गई मुफ्त बस सर्विस के बाद लड़कियों और ख़वातीन मुसाफिरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चारमीनार पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बाइक्स चोरी में मुलविस कम उम्र लड़कों की टोली का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 5 बाइक्स बरामद की गई। ACP चारमीनार डिवीजन रुद्रा भास्कर ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। ACP के मुताबिक 3 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लिया गया, जबकि सरकाशुदा गाड़ियों को खरीदने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। ACP चारमीनार डिवीजन ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। आज जो है हमारे चारमीनार क्राइम टीम बालास्वामी उनका टीम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के गाइडेंस में टोटल 6 एक्यूज जो उनमें 3 जो है बाई जुवेनल्स है, उनको अरेस्ट करे। ये पूरे व्हीकल अफेंडर्स है। ये छोटे बच्चे जो है जो गाड़ियाँ पार्क करते वो पार्क करे सो गाड़ी को हल्लू चाबी से निकाल लेके जाते हैं। बाद में अब्दुल्ला खान बोल के एक मेन एक्यूज्ड है, उनको देते हैं। उनको देने के बाद उन्होंने जो है महमूद खान और मोहम्मद इमरान बोल के दोनों रिसीवर्स है जो स्क्रैप खरीदते। ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट देके हुए ये गाड़ियों को उनके पास से लेके उसको स्क्रैप करके बेच रहे थे। ये केस में हमारे टोटल 5 केसेस डिटेक्ट हुए। इसमें जो है एक सैफाबाद का है, 4 जो है हमारे चारमीनार के पुलिस स्टेशन के है। ये पूरे रिकवरी करके टोटल 2,20,000 का अमाउंट व्हीकल्स रिसीव करे। इसमें जो है हम लोग सबको वार्निंग दे रहे हैं कि कोई रिसीवर्स बगैर डॉक्यूमेंट्स का कोई व्हीकल्स को खरीदना और उसको स्क्रैप करना करे तो उनको जो एक्यूज के साथ 379 है उसमें भिजाते हुए PD एक्ट भी डालेंगे बोल के हम लोग पुलिस की तरफ से वार्न करें। क्यों चोरी करते थे सर? ये छोटे बच्चे जो है इनको थोड़े एक बच्चे को पेरेंट्स नहीं है, बाकी जो है अय्याशी करते हुए ये चोरियाँ करना। जो बड़ा आदमी है उनको देते थे, उन्होंने क्या कि उसको स्क्रैप करा के बेच के उनको पैसे देते थे। टोटल कितने ऐसे? टोटल 6 है, 3 जो है बाई जुवेनल्स है, 3 में 2 रिसीवर्स है, एक क्या कि मेन ऑफेंडर है। टोटल कितने केसेस है सर इनको तक? अभी तो 5 केसेस है। इनको PD एक्ट का प्रपोजल देख रहे हैं। जुवेनल्स को तो नया था, मेन जो एक्यूज्ड है उनको PD एक्ट प्रपोजल लगाते हैं। इसमें रिसीवर्स का जो है 2 जने उनको भी हम लोग ये कानून PD एक्ट लगता नहीं लगता देख के उनको भी हम लोग। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू की शिरकत। साबिक़ BRS हुकूमत ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां नहीं दी। रियासती वज़ीर सीताक्का ने लगाया इल्ज़ाम। मर्दों के लिए RTC की खुसूसी बस का आगाज़। इब्राहीमपट्टनम ता एलबी नगर रोड पर तजुर्बाती असास पर किया गया आगाज़। जलपल्ली वार्ड नंबर 3 में 6 करोड़ से ज़ायद लागती तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। महेश्वरम रुकन असम्बली ने की शिरकत। साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स मीट का आगाज़। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने किया इफ्तिताह। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।